Market Manta. Market Manta. Market Manta. Market Manta. Market Manta. Market Manta. Good evening, listeners, and welcome to yet another edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic and business news of the day. And today being Sunday, we'll also be taking calls from you, our listeners, on mutual fund and related issues. You can call us on 23717106 and 23717117. And if you're calling from outside Delhi, please prefix the STD code that's 011 before the numbers. I am S. Rangabashyam, and with me is my co-anchor in Hindi, Amrish Saxena. Good evening, Amrish. Good evening, Ranga. नमस्कार. आर्थिक खबरों के कार्यक्रम मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है. यहाँ पर हम चर्चा करेंगे आर्थिक खबरों पर, और आज रविवार है, तो आज के इस कार्यक्रम में हम म्यूचुअल फंड से जुड़े आपके सवालों का जवाब देंगे. आप इस विषय पर हमसे कोई भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं. हमसे संपर्क करने के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं इन नंबरों पर 23717106 और 23717117. दिल्ली से बाहर के श्रोता इससे पहले एसटीडी कोड 011 भी डायल करें. आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं म्यूचुअल फंड विशेषज्ञ धीरेन्द्र कुमार. धीरेन्द्र जी, नमस्कार. कार्यक्रम में आपका स्वागत है. धन्यवाद आपका. और अब हेडलाइंस लेके मौजूद हैं एस रंगभाष्य. Thank you, Amrish. The top stories. Prime Minister Modi dedicates 75 digital banking units to the nation. Says world is appreciating India's digital prowess today. Prime Minister to inaugurate Kisan Samman Sammelan tomorrow. And global crude oil prices slump over 7% this week on recession fears. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 75 डिजिटल बैंकिंग इकाइयां राष्ट्र को समर्पित की और कहा कि भारत की डिजिटल शक्ति की विश्व भी तारीफ करता है. प्रधानमंत्री कल किसान सम्मान सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे और दुनिया में मंदी की आशंका के बीच कच्चे तेल के अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में इस सप्ताह 7% से अधिक की गिरावट दर्ज की गई. And now for all the details. Prime Minister Narendra Modi today dedicated 75 digital banking units or DBUs to the nation. The DBUs have been set up with an objective to ensure that benefits of digital banking reach every nook and corner of the country. It will provide a variety of digital banking facilities to people, including opening of savings account, balance check, printing passbook, transfer of funds, applying for credit and debit cards, paying taxes and bills. The Prime Minister said digital banking units will empower digital services and provide a robust digital banking infrastructure for the country. He said this will improve banking and financial management, promote transparency and also promote financial inclusion. He said in New India, banking services will be easily accessible to everyone. Mr. Modi said Jan Dhan, Aadhaar and mobile services have removed the hindrance of pendency. He added that direct benefit transfer has improved transparency in financial disbursement directly to the accounts of the beneficiaries. The Prime Minister said that the economy of a country is dependent on the robustness of its banking system. He said New India's economy has become consistent due to this robustness. Mr. Modi said banking sector has become a medium of good governance and better service delivery. He added that today the whole world is appreciating direct benefit transfer and digital prowess of India. Prime Minister said digital banking units will give rise to new innovations. He said New India has moved further with great pace towards digital currency, and through digital transactions, country's economy has benefited immensely.
और अब हमारे साथ दिल्ली से हमारे श्रोता जगमाल जुड़ चुके हैं। जगमाल जी नमस्कार, बताइए क्या पूछना चाहते हैं। नमस्कार जी, मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरा फोन मत काटना। नहीं फोन नहीं करते। जब तक मेरा जवाब ना सुन लूं, रेडियो से दूर हूं तो प्लीज। हाँ सर, मैं ये पहले तो नमस्कार करना चाहता हूँ अभी सभी को, धर्मेंद्र जी को भी, आपको भी जी नमस्कार। और फिर मैं ये जानना चाहता हूँ इनसे कि अभी जैसे पूरे में मतलब हमारा देश छोड़ के सब जगह रिसेशन का काफी वो हो रहा है पॉसिबिलिटी, तो ऐसे में क्या वारन बफेट के हिसाब से तो हमें इन्वेस्ट करते रहना चाहिए जी, लेकिन जी, आप हमें क्या ही सलाह देंगे धीरेन्द्र जी? जी खासकर जगमल जी, और हमारे दूसरे श्रोताओं को भी हम ये कहना चाहेंगे कि आज का जो कार्यक्रम है ना म्यूचुअल फंड्स से रिलेटेड है, और धीरेन्द्र जी उसमें तो स्पेशलाइज करते ही हैं, सारा देश जानता है। धीरेन्द्र जी, इस पे आप कोई अपनी टिप्पणी करना चाहेंगे? जी हाँ, मैं इनको ये बताना चाहूंगा कि इक्विटी में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं और आपके लंबे समय का पैसा है, तो इस तरह के मौके पे जब बाजार डूबा हुआ हो, लोगों को आशंका हो, ऐसे समय में लगाया हुआ जो पैसा होता है उसमें आपको निराशा नहीं होती है, आपको आमतौर पे अच्छा रिटर्न मिलता है। जब बाजार में बड़ी खुशहाली हो, बाजार रफ्तार से बढ़ रहा हो, बाजार अपने शिखर पे हो, तब और तेजी से बढ़ रहा हो, तब पैसा लगाना आसान होता है, लेकिन उसके बाद पैसा बनाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आज अगर आप लगाते हैं और कम से कम उस टाइम फ्रेम के नजरिए से लगाते हैं, तो आज जैसे समय में हाँ, एक दो नियम जो कि हमेशा किसी भी निवेशक को फॉलो करना चाहिए, लगाए उसमें जिसके बारे में आप जानते हैं, स्पेकुलेट ना करें, धीरे धीरे करके लगाए, एक साथ ढेर सारा पैसा मत लगाएं। उसके बाद सारा पैसा एक ही जगह पे ना लगाएं, कम से कम अगर आप कंपनियों में लगा रहे हैं तो 5-10 कंपनी में स्प्रेड करके लगाएं, ताकि हम किसी को भी पता नहीं होता है कि क्या चीज के बारे में हमें पूरी जानकारी नहीं है, और अगर एक दो गलती हो भी जाती है, एक दो चीज ठीक नहीं बनता है, तो भी आपका बड़ा नुकसान नहीं होगा। Okay. Dhiren, we have started off on a nice note of, putting things in perspective. You have always been advocating that, people should invest in broad-based mutual funds only and kind of avoid, sector-specific ones. But don't you think, investing in a couple of sector-specific funds could also help, and one keeps on waiting till that particular sector does well and kind of exits from that and gains a lot? No, the point is that, when you are investing, when you diversify your investment, you are investing in sectors as well. It is not that, the diversified fund is made up of a collection of sectors. Then there could be, when you invest in a banking fund and you are normally the index fund or our economy or the market capitalization is heavily tilted towards banking. So when you invest in a diversified fund, a third of your money might well be in banking. So that's the reason. The other thing that why I actually strongly discourage investors not to invest in sector funds is that sector funds are either at the top or at the bottom of the bag. And normally investors invest or get attracted to it when they are at the top of the bag. And that is when, you often go wrong. Look at, pharma funds. When everybody got excited, invested, now it is, last 1 year it is down 9%. Technology, which has a very compelling performance, last 5 years it is up 25% annualized, 19% annualized over the past 10 years. But it is down 20% in the last 1 year. Even this year, it's up about it's down about 26%. So and because of the concentration, it defies the logic of a mutual fund. You are looking for instant diversification when investing in a fund. When you invest in a sector fund, you are deprived of the very basic benefit of that. और जयपुर से हमारे श्रोता जितेंद्र लाइन पे हैं। जितेंद्र नमस्कार, बताइए क्या पूछना चाहते हैं? हाँ नमस्कार सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे कोई एनएफओ आता है, एनएफओ से बचना चाहिए, आप बिल्कुल सही बोलते हैं, तो हम कैसे, कितने दिन बाद हम कैसे समझे कि वो एनएफओ बढ़िया कर रहा है, उसका क्या देखने का तरीका है? ये एक हो गया। दूसरा प्रश्न है कि ये जो लॉजिस्टिक और क्या इंफ्रास्ट्रक्चर का किसी का एनएफओ आया है, तो कैसा लॉजिस्टिक और इंफ्रास्ट्रक्चर, वो क्या चीज है एनएफओ होता था, उसके बारे में बताएं। नहीं, ये जो लॉजिस्टिक्स और ऑटो सेक्टर का फंड जो आ रहा है,
उसके पीछे सोच ये है कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा और इस तरह की कंपनियों को खासा फायदा होगा। खासा फायदा इसलिए होगा, ये ट्रांसपोर्टेशन लॉजिस्टिक्स की कंपनियों को इसलिए फायदा होगा क्योंकि हमारे यहाँ वहाँ पे बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है। अगर अब दो चीज देखें कि जिस तरह से सड़कों का विस्तार हो रहा है और जिस तरह से हमारे यहाँ जीएसटी एक बहुत बड़े बाजार को वो कंसोलिडेट कर पाया है कि कहीं से सामान चलता है और बड़ी निश्चिंतता से कहीं और पहुंच जाता है, आप उसको प्लान कर पाते हैं, पूरा रूट प्लान कर पाते हैं और टैक्स के झंझटों के बगैर। तो इससे बड़ा बदलाव आया है। उसके अलावा जो दुनिया भर का ट्रेड है वो तो बदल ही रहा है, बनता कहीं और है, पहुंचता कहीं और है और अब देश भर में बड़ी आसानी से चीजें पहुंचनी शुरू हो गई हैं। और ये जो हम ई कॉमर्स का जो विस्तार हमने देखा है कि बाजार भले ही हर जगह उस तरह से ना पहुंच पाया हो, लेकिन सामान तो पहुंच पा रहा है कंज्यूमर तक और इसमें इनका बहुत बड़ा रोल हो सकता है। इस वजह से ये फंड आ रहे हैं। लेकिन ये मुझे कोई ऐसा स्पेशल खूबसूरत बढ़िया चीज होता कि आप 3 साल पहले लगाते और आज 1-2 फंड जो ऐसे हैं उसमें अच्छा खासा रिटर्न मिला। देखना होगा कि यहाँ से ये फंड कैसा करते हैं। आमतौर पे आपको एनएफओ में इसलिए नहीं लगाना चाहिए क्योंकि एक तो एनएफओ में लगाया हुआ जो है आप पैसा देंगे उसके बाद उसको लगाया जाएगा और आपको इस फंड के बारे में कोई जानकारी नहीं है कि गिरते बाजार में कैसा करता है, बढ़ते बाजार में कैसा करता है। अगर म्यूचुअल फंड में चुनाव करने का अगर कोई चीज आधार हो सकता है तो वो हर तरह के बाजार में वो कैसा करता है, जिसके लिए उसका लिमिटेड 1-2 साल में 2-3 साल में ये जब बाजार में एक उतार का दौर और एक उतार और गिरावट का और बढ़त का दौर अगर पूरा हो जाता है तो आपको अंदाज हो जाता है कि ये फंड कैसा करता है। एक अच्छे फंड की निशानी तो यही है कि कम गिरते बाजार में कम गिरे और बढ़ते बाजार में थोड़ा बेहतर बढ़े और नए फंड के बारे में ये पता करना बड़ा मुश्किल है। Right. Well, listeners, you are tuned in to the phone-in edition of Market Mantra on All India Radio. And just to remind our phone numbers are 2371-7106 and 2371-7117. And if you're calling from outside Delhi, please prefix the STD code. That's 011 before the numbers. And as you know, we have with us online our mutual fund expert Dhirendra Kumar as always. So you can put all your queries, questions and doubts to him and get them resolved. Let's move on and take our next caller. We have PK Khanna joining us from Delhi. Good evening, Mr. Khanna. And what's it that you'd like to talk about? गुड इवनिंग। मेरा क्वेश्चन है कि मोतीलाल ओसवाल NASDAQ 100 ETF, क्या इसमें इस समय लमसम इन्वेस्टमेंट करना ठीक रहेगा? और सेकेंडली इसी से रिलेटेड कि डिक्लाइनिंग रुपी के अंदर क्या इस टाइप के फंड के NAV पे कुछ फर्क पड़ता है? यस जी हाँ, एक तो किसी भी इक्विटी फंड में आपको एक साथ बड़ा पैसा नहीं लगाना चाहिए और खासकर यहाँ पे 2 तरीके का रिस्क दिखता है। एक तो उस बाजार का रिस्क, और आपने देखा होगा कि NASDAQ 100 में जिस तरह का उतार चढ़ाव रहता है वो भारतीय बाजार के उतार चढ़ाव से ज्यादा दिखता है। उसके अलावा जो करेंसी का रिस्क है, डेप्रिसिएशन और एप्रिसिएशन, उसके वजह से एक एडेड लेयर ऑफ वोलेटिलिटी दिखता है या गिरावट या बढ़त दिखता है। इसका फायदा एक ही होता है, मेरा अभी भी यही असम्पशन है कि अगर आप लंबी अवधि में देखें 2 साल 4 साल में तो रुपया डेप्रिशिएट करता है, कम समय में कभी कभी अप्रिशिएट भी कर लेता है। जिस समय कि आपका पैसा चला गया 82 रुपए पे, लेकिन अगर आप ले आते हैं तो आपको मिलेगा 80 रुपए। ऐसी स्थिति बड़ी कम होती है। आमतौर पर किसी ने भी अगर किसी विदेशी फंड में पैसा लगाया होता और पिछले 1-2 साल में लगाया होता तो अभी तक का पैसा 75 रुपए से कम में आपने $1 था, तो उस हिसाब से आपका कम पैसा गया। और आज के दिन आप अगर उस पैसे को वापस ले आते हैं तो आपको अगर उस एसेट का दाम नहीं भी बढ़ा हो तब भी आज आपको 80 या 82 रुपए मिलेगा। तो ये जो डेप्रिसिएशन का दौर है इससे आमतौर पे एक भारतीय निवेशकों को फायदा होता है लंबे समय में। कम समय में ये यहाँ पे शायद नुकसान हो, इसलिए और इन्हीं कारणों से मुझे लगता है, और खासकर पिछले दिनों जिस तरह का गिरावट का दौर दिखा है उसमें निवेशकों के लिए बहुत निराशाजनक हो सकती है स्थिति जब बाजार में वहां बड़ी गिरावट हो, और हो जो कि दिख रही है। इसलिए इन कंपनियों में मुझे बड़ा भरोसा है, इन फंड्स में मुझे बड़ी उम्मीद है कि ये बड़े ही डिस्टिंक्ट एडवांटेज वाली कंपनियों का ये इंडेक्स है। इसमें पैसा जरूर लगाना चाहिए, लंबे समय के लिए लगाना चाहिए। और चूंकि
क्योंकि बहुत भारी उतार चढ़ाव है, इसलिए एक साथ नहीं लगाना चाहिए। और पश्चिम बंगाल से हमारे श्रोता अभिषेक लाइन पे हैं। अभिषेक नमस्कार, बताइए क्या पूछना चाहते हैं। पहले नमस्ते, इंडिया का बेस्ट म्यूचुअल फंड एक्सपर्ट से बात हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा क्वेश्चन है कि सर, अभी इन्फ्लेशन बढ़ा हुआ है और इंटरेस्ट रेट भी बढ़ रहा है। हिस्ट्री में कितनी बार ऐसा हुआ था, और जब इंटरेस्ट रेट इन्फ्लेशन गया था वापस, कितना टाइम लिया था, और क्या बोलते हैं उसको, और इंटरेस्ट रेट जब कम हुआ था उसके बाद मार्केट ने कैसा बिहेव किया था, थोड़ा इसमें डिटेल में बताएं। और एक छोटा सा क्वेश्चन इसके बाद भी है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन सर, स्मॉल कैप में 2-4 साल में कैसा देखते हैं आप? ये जो इंटरेस्ट रेट बढ़ने और ये गिरावट का दौर है, ये हमेशा साल 2 साल में होता रहता है। कभी कभी बड़ी रफ्तार से, अचानक तरीके से होता है, कभी कभी बहुत ही प्रेडिक्टेबल तरीके से होता है, और यह अचानक महंगाई नहीं बढ़ी है। और ये खासकर जो ये जो हम दौर देख रहे हैं, ये हर बार एक नई स्थिति पैदा होती है, और इसलिए कह पाना कि क्या साइकिल है, इस साइकिल को हम डिफाइन कर सकते हैं किसी टाइम पीरियड में, बड़ा मुश्किल है। बहुत सारी चीजें हैं जो कि इसमें कंट्रीब्यूट करती हैं, जिसमें कि एक सेंटीमेंट भी एक बहुत बड़ा रोल है। जिस तरह से सेंट्रल बैंक बिहेव करते हैं इस उम्मीद में कि अगर महंगाई बेकाबू हो जाए तो उसको होल्ड करने के लिए उन्हें क्या, कई बार ये सिग्नलिंग भी होता है, ना कि रियल मनी सप्लाई को उस तरह से अंतर आता है या बदलाव लाया जाता है। इसलिए ये कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन आमतौर पे आपको यही अज्यूम करके चलना चाहिए कि अगर ब्याज दरें बढ़ी हों तो बाजार के लिए नुकसानदेह है, लोगों का रिस्क प्रीमियम का एक्सपेक्टेशन बढ़ जाता है और कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ जाता है। अगर कोई ऐसा कारण हो जिसकी वजह से लगता है कि ये महंगाई दरें बढ़ी रहेंगी और ये महंगाई दरों के कम होने के आसार नहीं है, क्योंकि बहुत स्ट्रक्चरल रिजिडिटी ऐसा है, जो कि भारत में ऐसी स्थिति नहीं है। भारत में अचानक ये स्थिति हुई है, और खासकर पिछले 8-10 साल से जिस तरह से हमारे सेंट्रल बैंकर्स ने, उसके पहले ऐसी स्थिति नहीं थी। हम बहुत ऊंचे ब्याज दरों के आदी रहे हैं, और हमारे यहाँ ब्याज दरें काफी ज्यादा रही हैं, महंगाई भी ज्यादा रही है, और पिछले 7-8 साल से जिस तरह से इन्फ्लेशन टारगेटिंग का दौर सेंट्रल बैंकर्स ने अख्तियार किया है, जिसके वजह से इन्फ्लेशन का, ब्याज दरें कम हुई है, इन्फ्लेशन भी कम हुआ है, और मुझे उम्मीद है कि ये अगर थोड़ा सा स्टेबिलिटी आता है हमारे बाजार में, और जिस तरह से हमारे यहाँ जिस तरह का जो कहा जाता था कि सप्लाई साइड कंस्ट्रेंट्स है या जिस तरह का स्ट्रक्चरल कंस्ट्रेंट है, जिसकी वजह से वहां पे बड़ी स्थिति में बदलाव हुआ है, खासकर जीएसटी और रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से, तो वो सीजनैलिटी भी शायद कम हो जाए। लंबे समय के निवेश के लिए आप उम्मीद कीजिए कि ब्याज दरें कम होगी, महंगाई कम होगी, और हम बेहतर करेंगे दुनिया से। Right. Let's take our next caller. We are joined by Gurunath from Thane. Welcome to the program. जी सर, नमस्कार। Yeah, go ahead, put your question. जी सर, धीरेन्द्र कुमार को भी जी नमस्कार। जी नमस्कार सर। मेरा क्वेश्चन तो सर ये जो म्यूचुअल फंड जो मतलब ये जो टेक्नोलॉजी के बारे में पूछना था सर। ये नेट पे सर ये जो कंपनी जो फंड इश्यू करती है, क्या उनका मतलब हर एक का जो वेब पोर्टल बना हुआ है, कुछ का तो बना हुआ है, लेकिन वो क्लिक करने के बाद उसमें कुछ तकनीकी खराबी दिखती है, तो क्या मतलब हमारा हम जहाँ इन्वेस्ट किया है वो कैसा काम कर रहा है, परफॉर्म कैसा हो रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, तो ये क्या इनके लिए मतलब कंपलसरी है क्या? ये जो नेट पे उनके जो पोर्टल है, वेबसाइट है, इन पर मतलब इन्फॉर्मेशन देना मतलब क्या कंपलसरी है कि मतलब? थैंक यू सर। मैं आपको ये स्थिति बताता हूँ। आपको पैसा लगाने के बाद अगर आपको जानकारी नहीं मिल रही है कि आपका पैसा कैसा कर रहा है, तो ये जानकारी लेना बड़ा आसान है। आप दोनों रजिस्ट्रार से, कैम्स और कार्बी, जिसके जरिए जो दोनों ये 2 रजिस्ट्रार कंपनीज हैं जो कि देश के सारे म्यूचुअल फंड का अकाउंट मैनेज करती हैं। आप किसी भी फंड में इन्वेस्ट करें, आपका अकाउंट स्टेटमेंट इन्हीं के पास से आता है, और इनके पास से एक ऐसी सुविधा उपलब्ध है कि आप कभी भी अपने सारे म्यूचुअल फंड का सारा स्टेटमेंट रोज आपको
उपलब्ध कराया जाता है। अगर आप चाहें तो आप रिक्वेस्ट करेंगे और आपको आपके ईमेल पे ये आ जाएगा। आपका निवेश करने के बाद काम करता रहता है अगर निवेश हो चुका है तो। और भले ही आपको जानकारी नहीं मिले, जानकारी नहीं मिलने से आपका निवेश काम करना बंद नहीं करता है। आप यहाँ से जानकारी कभी भी ले सकते हैं, मॉनिटर कभी भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर किसी ऐप के जरिए या किसी फंड कंपनी के जरिए आप इन्वेस्ट कर रहे हैं और वहां पे भी अगर आपको वैसी सुविधा नहीं मिल पा रही है कि आप आसानी से जानकारी ले पा रहे हैं, तो इनका एक कंसोलिडेटेड एक फ्रंट एंड है जिसका नाम है mfcentral.com। आप इस पे जाएं और यहाँ पर से आप अपनी सारी जानकारी ले सकते हैं, अपनी अकाउंट स्टेटमेंट ले सकते हैं, आप रिडेम्पशन रिक्वेस्ट ले सकते हैं, आप नॉमिनी बदलना चाहें तो बदल सकते हैं, फोन नंबर बदलना चाहें तो बदल सकते हैं, ज्यादा निवेश करना हो उसी फंड में तो ये भी कर सकते हैं, SIP, SWP ये सब चीज भी आप वहां सेटअप कर सकते हैं। तो अगर कोई सर्विस अगर आपको किसी और पोर्टल के जरिए न भी मिले तो म्यूचुअल फंड की जिम्मेवारी है कि आपको उपलब्ध कराए और यहाँ पर ये आपको आसानी से उपलब्ध है। और आगे बढ़ने से पहले लेते हैं आज की दूसरी हेडलाइन स्टोरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली के भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में प्रधानमंत्री किसान सम्मान सम्मेलन 2022 का उद्घाटन करेंगे। सम्मेलन में देश भर से 13,000 से अधिक किसान और तकरीबन 1,500 कृषि स्टार्टअप हिस्सा लेंगे। इस सम्मेलन में विभिन्न संस्थानों से जुड़े 1 करोड़ से अधिक किसानों की ऑनलाइन जुड़ने की उम्मीद है। सम्मेलन में शोधकर्ता, नीति निर्माता और अन्य पक्षधारक भी शामिल होंगे। प्रधानमंत्री प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 12वीं किस्त के रूप में 16,000 करोड़ रुपए की राशि जारी करेंगे। इस योजना के अंतर्गत पात्र किसान परिवार को प्रतिवर्ष 6,000 रुपए की राशि 2,000 रुपए की 3 समान किस्तों में दी जाती है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत किसान परिवारों को 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक प्राप्त हो चुके हैं। And let's continue taking more phone calls. We have now Ashish joining us from Mumbai. Good evening and welcome to the program. Yeah, good evening. First of all, thank you, Dhirendra sir, and entire market team for giving such a wonderful program every week. It is very enriching. मुझे धीरेन्द्र सर से पूछना था कि ये हम सब जब इन्वेस्ट करते तो हमारा एक गोल रहता है कि हमारे पैसे कैसे बढ़े, कितने में, पर एक फियर भी होता है जैसे साइकोलॉजी की, अगर हमारा पैसा बढ़ा नहीं तो एक फियर रहता है कि हम उसमें क्यों नहीं बढ़ रहा है, कैसे। तो ये फियर जो है हमारा, जो ग्रीड और फियर को कैसे हम शांत कर सकते हैं, मतलब कि वो इन्वेस्टमेंट अगर मेरा नहीं हुआ तो हम उसको बड़े झुके नहीं और हम मतलब कुछ और करके बढ़ना चाहिए, ऐसे कैसे, मतलब साइकोलॉजी को चेंज करना है। नहीं, बाजार बिल्कुल डरावना है। बाजार में जिस तरह का उतार चढ़ाव देखा गया है या देखा जाता है, और खासकर जब आम निवेशक बाजार के बारे में उत्साहित होता है उसके तुरंत बाद बाजार में निराशा का दौर आता है, और इसलिए चिंतित होना या डरना काफी एक्सपेक्टेड है, काफी यूजुअल, काफी नॉर्मल है। और इससे बचने का आपके पास 1-2 तरीका है। एक तो जो कि मैं हमेशा बताता रहता हूँ और लगता है कि मैं काफी एक फंसे हुए रिकॉर्ड की तरह मैं दोहराता रहता हूँ कि एक साथ बड़ा पैसा मत लगाइए, क्योंकि जैसे आप लगाते हैं और ज्यादा पैसा लगाते हैं और वो अचानक कम हो जाता है और कम समय में हो जाता है तो बड़ी निराशा होती है, और उससे वो कुछ भी हम कह लें, निराशा बहुत ज्यादा होती है और उस समय हम डर के अपना पैसा निकालते हैं कि और नुकसान नहीं हो। इसलिए धीरे धीरे पैसा लगाइए, डाइवर्सिफाई कीजिए। आमतौर पे हम हाल फिलहाल जो अच्छा किया होता है वहां पैसा लगाते हैं, और वहां पे खाता रिस्क भी होता है क्योंकि वहां पे ज्यादा गिरावट होती है अगर तेजी से कुछ बढ़ा है तो। ये 2 चीज करने के बाद तीसरा जो चीज लोगों को आमतौर पे करना चाहिए कि जब तक आपका पैसा कुछ इकट्ठा हुआ ही नहीं है, लोग शुरू करते हैं 5,000 रुपए का SIP और हर महीने देखते हैं। 1 साल तक मत देखिए, क्योंकि अभी तक कुछ ऐसा इकट्ठा हुआ ही नहीं है जो कि अभी तक गिरेगा। जब पैसा एक बार थोड़ा बढ़ जाए, थोड़ा इकट्ठा, एक रकम इकट्ठा हो जाए, जब आप चिंता आपका जस्टिफाइड हो, तब आप एसेट एलोकेशन कीजिए, तब देखिए कि उसमें से कितना पैसा आपको फिक्स्ड इनकम में लगाना चाहिए। पहले 2-4 साल चिंता से नियमित रूप से पैसा लगाइए ताकि वो कुछ ऐसा रकम हो जो कि गिरने की वजह से आपको चिंता हो, और उस समय अपने पैसे को एक डिफाइंड तरीके से फिक्स्ड इनकम में एलोकेशन, फिक्स्ड इनकम में मूव कीजिए, ताकि जब भी बाजार में गिरावट हो तो उसका आप फायदा उठा पाए फिक्स्ड इनकम से इक्विटी में लगा के, और जब बाजार बढ़ पाए और आप इक्विटी से फिक्स्ड इनकम में कर पाए
तो ये बाजार के बढ़त और गिरावट के दौर का फायदा उठा पाएंगे। तो ये 2-3 चीज अगर आप करते हैं, और उसके अलावा जो पहला नियम जो कि हर एक को देखना चाहिए, जिसकी वजह से हम ज्यादा चिंतित होते हैं कि कम समय में जो पैसे की जरूरत है वो कभी इक्विटी में लगाए ही नहीं। और कोलकाता से हमारे श्रोता प्रशांत लाइन पे हैं। प्रशांत जी नमस्कार, बताइए क्या पूछना चाहते हैं। सर गुड इवनिंग। जी सवाल पूछिए। सर मेरा क्वेरी है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन म्यूचुअल फंड एंड ETF एंड देयर एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस? राइट। म्यूचुअल फंड और ETF दोनों अंडरलाइन जो है वो एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है। आपका पैसा बहुत सारे शेयर्स में लगा होता है। ETF आमतौर पे एक इंडेक्स के पे आधारित होता है, सेंसेक्स या निफ्टी या स्मॉल कैप इंडेक्स पे आधारित ETF बिल्कुल उसी अनुपात में, उसी रेशियो में उन कंपनियों में पैसा लगाता है जैसे जो इंडेक्स के कॉन्स्टिट्यूएंट्स है। म्यूचुअल फंड और ETF में एक दूसरा बड़ा अंतर है कि आप जिस तरह से खरीदते और बेचते हैं। ETF खरीदने के लिए आपको एक स्टॉक ब्रोकर के पास जाना होता है, आप शेयर की तरह उसको खरीदते हैं, और ETF जब आप खरीदते हैं तो कोई दूसरा व्यक्ति बेच रहा होता है। इस वजह से आप जब खरीद रहे हैं तो वो NAV से या थोड़ा ऊपर या नीचे हो सकता है। जब आप म्यूचुअल फंड खरीदते हैं तो रोज शाम को आप 10,000 रुपए देते हैं कट ऑफ टाइम के पहले, और आपको म्यूचुअल फंड नहीं मिलता है। उस दिन शाम को जो NAV निर्धारित की जाती है उसको आपके रकम से डिवाइड करके आपको उतने यूनिट, उस दिन का NAV आपका प्राइस है। लेकिन म्यूचुअल ETF का प्राइस उसका NAV नहीं हो सकता है, अक्सर नहीं भी होता है। ये वो थोड़ा ऊपर या नीचे होता है, क्योंकि जो बाजार में डिमांड या सप्लाई है उस पर भी आधारित ये बदलाव देखा जाता है। कभी ये प्रीमियम पे बिकते हैं, कई बार ये डिस्काउंट पे बिकते हैं। Right. And Dhirendra, we also have a question from Nishant on the email saying, what is IDCW, income distribution cum withdrawal, in relation to mutual funds? This is something, which SEBI actually changed the nomenclature of what was being called, what used to be called as dividend plan. Okay. The dividend from a mutual fund doesn't matter, because if you invest ₹1,00,000 today and tomorrow, and assuming that for ease of illustration, I'm saying that you invest ₹1,00,000 and tomorrow there is a 10% dividend. Yeah. So a lot of people used to think that the dividend from a mutual fund is some kind of profit or an indicator of superior performance or performance. Right. Which is not so, because if you invest ₹1,00,000 in a mutual fund and tomorrow you get 10% dividend, then the value of the residual investment actually gets reduced to 90,000. Okay. So this is, and that is what this nomenclature change is trying to signify. Okay, fine. Let's move on and take a look at the energy scenario. Global crude oil prices plummeted over 7% this week as fears of recession and weak oil demand, especially from China, outweighed support from a large cut to the OPEC plus supply target. Brent crude oil futures dropped 7.6% during the week to end at $91.63 per barrel, while US crude futures fell 6.4% to close at $85.61 per dollar. US inflation recorded its biggest annual increase in 40 years, reinforcing views that interest rates would stay higher for longer with the risk of a global recession. The next US interest rate decision is in November. The US consumer sentiment also continued to improve steadily in October. The US dollar index rose 0.8%. A stronger dollar reduces oil demand by making the fuel expensive for buyers using other currencies. और चलते हैं कार्यक्रम की समाप्ति की ओर। धीरेन्द्र जी, इस कार्यक्रम में भाग लेने और श्रोताओं को बहुमूल्य जानकारी देने के लिए आपका धन्यवाद। धन्यवाद आपका। And before we close, a quick look at the top stories. Prime Minister Modi dedicates 75 digital banking units to the nation. Says world is appreciating India's digital prowess today. Prime Minister to inaugurate Kisan Samman Sammelan tomorrow, and global crude oil prices slumped over 7% this week on recession fears. And with that, we come to the end of this edition of Market Mantra. Thank you so much for joining us. Goodbye and have a wonderful Sunday evening. Market